Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinod Palan. I'm back. This is the second lecture of Kinematics. पिछले lecture में we discussed average velocity, average speed, average acceleration, ये सब average quantity से बारे में discuss किया था. Today we're going to talk about instantaneous velocity, instantaneous acceleration, and in particular we're going to be discussing uniform acceleration motion in this lecture. So I hope you're ready for the second lecture. Let's go. So सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो बात करते हैं. सी एवरेज वेलोसिटी क्या था कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. डिवाइड बाय टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा. इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, so let's say the time from A to B is, let's say, some dt. So this notation dt, which we call as infinitesimally small, so you already know this notation from your study of calculus. So infinitesimally small time interval पे जो change in position है वो मेरा displacement हो जाएगा. So let's say जो length AB है वो मेरा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ds. और इन वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. सो पॉइंट ए एंड बी के बीच में टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी itself becomes the instantaneous velocity at A or at B, because the time interval between A and B is so small that they are practically the same instant. So we are defining instantaneous velocity as a special case of average velocity when the time interval is infinitesimally small. Infinitesimal matlab, you remember, it is smaller than any number you can think of. So it is as close to zero as possible without actually being zero. So velocity will become the infinitesimal displacement vector divided by the infinitesimal time interval. तो ये मेरा instantaneous velocity बन गया. ठीक है, at that time interval जहाँ पर हम लोगों ने dt measure किया है. At that time instant rather, जहाँ से हम लोगों ने dt measure किया है. So this becomes my instantaneous velocity. And similarly instantaneous acceleration में क्या लिख सकता हूँ? Average acceleration क्या था? Change in velocity by time. फिर से अभी मैं एकदम infinitesimally small time interval पे measure करूंगा change in velocity, so that will become dv vector, the infinitesimal change in velocity, divided by the infinitesimal time interval dt. तो ये मेरा instantaneous acceleration बन गया. So these are the two expressions for instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Acceleration के लिए एक और expression हम लोग देखेंगे, but सबसे पहले uniform acceleration की बात करते हैं. So uniform acceleration में we have acceleration as a constant with time. So if it's a constant with time, तो मैं कोई भी time interval पे measure करूँ acceleration, whether it is infinitesimally small or whether it is a large time interval, I'll get the same value because it is a constant. So average acceleration and instantaneous acceleration become same. ठीक है? So can I just write कि my acceleration is final velocity minus initial velocity divided by the time taken. So the final velocity becomes initial velocity plus at. सब वेक्टर फॉर्म में देखो. So यहाँ पे u, v और t exactly क्या है? So the way we write this equation when we are solving a question or analyzing a problem is, just imagine कि you are observing some motion and you have a stopwatch in your hand, and you start the stopwatch at some instant. At the instant you start the stopwatch, you are going to start measuring time. तो जिस instant पे तुमने stopwatch शुरू किया, that becomes t equal to 0. That becomes time equal to 0. So u velocity is the velocity. अभी से velocity सिर्फ बोलूँगा मतलब instantaneous, ठीक है? So the u vector is the velocity at time equal to 0. T is the variable for time. So this is the instant at which you as an observer have started your stopwatch. And what is v vector? V vector is the velocity at time t. कोई जनरल टाइम t equal 1 second रखोगे तो velocity at 1 second मिलेगा, t equal to 2 second रखोगे तो velocity at 2 second मिलेगा. ठीक है? And a vector is my acceleration. So
इट इज अप टू अस कि t इक्वल टू 0 हम लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं, करेक्ट। ऑलराइट, सो ये मेरा इक्वेशन बन गया v इक्वल टू u प्लस 8t। सो इसमें just notice that all of these quantities are vectors. So ये सब vector addition, u vector plus a vector into t. t is a scalar, तो a vector multiplied by a scalar will still be a vector. So ये vector and resultant is v vector. Alright. So let's call this the first equation of motion. Now if I want to calculate displacement, तो मेरे पास already एक equation है v vector is ds by dt. इसको अगर मैं integrate करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? Displacement मिल जाएगा. So let me write v vector as ds vector by dt should be equal to u plus at. अब इसको मैं dt को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं. So the way we do integration, definite integration, is we take all the like terms on one side. तो सारे राइट हैंड साइड पे मैं टाइम के टर्म्स ले रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स रखूंगा. तो डिस्प्लेसमेंट को तो सिर्फ ds है and right hand side पे देखो क्या क्या आ रहा है. And now I will integrate. And when I integrate, देखो वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर है यहाँ पर, अच्छा से देख लो. तो यहाँ पे वेक्टर को इंटीग्रेट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलर्स इंटीग्रेट होता है, वेक्टर भी इंटीग्रेट होता है. तो u वेक्टर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, टाइम के साथ थोड़ी चेंज हो रहा है. दैट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, or rather it's a velocity vector at t equal to 0. It's a constant. So can I take this out of the integral? Similarly, a vector is a constant, which is what we have assumed for uniform acceleration. A vector भी बाहर ले सकता हूँ मैं. तो displacement is measured from the initial position. तो initial position, initial instant में तो displacement obviously 0 है. So lower limit time के लिए 0 और displacement के लिए भी 0. And कोई general time t, that becomes the upper limit के लिए displacement s vector, ठीक है. दैट इज द अपर लिमिट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल. तो इंटीग्रल ds कितना हो जाएगा? सिंपली s, और लिमिट्स लगाऊंगा मैं s माइनस 0, तो बचेगा सिंपली s. अच्छा, u वेक्टर बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा? सिंपली t, और लिमिट्स लगाऊंगा 0 से t, तो t माइनस 0 प्लस a वेक्टर बाहर ले लिया मैंने, और t का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2. फिर से लिमिट 0 से t. बेसिकली अगर तुमको चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिमिट्स क्या क्या है. 0 से t, 0 से t. देखो, तब s वेक्टर में s वेक्टर डाला माइनस 0, तो बचेगा s. t में t डाला ऊपर माइनस 0, तो बचेगा ut. प्लस फिर से t स्क्वायर में t डाला माइनस 0. And this is what we refer to as the second equation of motion. All of these is for uniform acceleration. So ये दो equations of motion should seem familiar to you. स्कूल में शायद पढ़ा होगा, but usually सिर्फ वो one dimension केस के लिए पढ़ते हैं. We are doing it in the general case where we are treating v vector, a vector, u vector, s vector, all as vectors. So s is equal to ut plus half at square जो पढ़ते हो स्कूल में. Just remember all of these quantities are vectors. Okay, so I hope you've understood both the equations of motion. और एक और थर्ड इक्वेशन भी निकालेंगे. तो पहले तो ये लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी विल कंटिन्यू. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो उसके लिए सबसे पहले जो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखा इक्वेशंस, लेट्स जस्ट रिजॉल्व देम इन एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जो मैंने वी वेक्टर को लिखा है, मैंने वी वेक्टर इज यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी. अगर मैं x कंपोनेंट लूँ इसका पूरा, तो vx इज ux प्लस axt. तो ये बेसिकली क्या बन गया, मेरा सब x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हो गए. सिंपली आई कैन राइट, सिमिलरली आई कैन राइट vy इज uy प्लस ayt, एंड वैसे ही z एक्सिस के लिए. अच्छा, सेम थिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो s वेक्टर इज u वेक्टर t प्लस हाफ at स्क्वायर था, उसको मैं लिख सकता हूँ sx इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. सो सब जगह x कंपोनेंट ले लिया, वैसे ही y एक्सिस के लिए भी लिख सकता हूँ और z एक्सिस के लिए भी लिख सकता हूँ. लिख नहीं रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इट शुड बी ऑब्वियस. आई कैन राइट इट फॉर ऑल थ्री एक्सिस इन द सेम मैनर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट how we can eliminate time in order to get the third equation of motion. तो
सबसे पहले उससे पहले आई वुड लाइक टू डिराइव द एवरेज वेलोसिटी इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए रिलेशन ऑलरेडी है मेरे पास, v = u + at, but let's derive the average velocity. So if I want the average velocity, that will simply be s by time, displacement by time, correct? तो देख लेते हैं, ut plus half at squared divided by time. ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट at as v minus u यहां से, तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो क्या बन गया, तो एवरेज वेलोसिटी देखो क्या बन गया, v plus u by 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो एक्चुअली इट बिकम्स द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज। मैथमेटिकल मैथ्स में जो एवरेज पढ़ते हैं, तो वही एवरेज वेलोसिटी बन गया। बट डोंट यूज दिस फॉर्मूला एनीवेयर एक्सेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है? अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कर सकते कि फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 हर केस में एवरेज वेलोसिटी कर रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, वो ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, but in the case of uniform acceleration it comes out to be a very nice result where it's final velocity plus initial velocity by 2, but only in the case of uniform acceleration। बार बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। Alright, तो एक बार मेरे पास ये आ गया, so I can also write displacement as average velocity into time, मतलब v plus u by 2 into time। just ये इस इक्वेशन से I'm just writing this। अच्छा, so let me just use this equation and let's work in the x component for now। तो इस इक्वेशन का अगर मैंने x कंपोनेंट वाले सारे वैल्यूज लिख लिए, तो देखो क्या आएगा, sx is equal to vx plus ux by 2 into t, correct? अच्छा, now what I'm going to do is I'm going to try and find an equation without any mention of time। suppose मुझे टाइम का टर्म चाहिए ही नहीं, जो फर्स्ट टू इक्वेशन मोशन है उसमें सब में टाइम है ना, आई डोंट वांट टाइम। सो लेट्स फाइंड अ रिलेशन बिटवीन यू, वी, एस, एक्सेलरेशन। सर सिर्फ इन क्वांटिटीज के टर्म्स में एक रिलेशन चाहिए विदाउट एनी मेंशन ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन, नहीं दिस इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट चूज कर रहा हूं मैं, तो ये इक्वेशन में मैं टाइम एलिमिनेट करता हूं। तो टाइम कितना आ जाएगा, वी एक्स माइनस यू एक्स बाई ए एक्स, करेक्ट? तो देखो कैन आई राइट एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस यू एक्स बाई 2 into Vx minus Ux by Ax। ये कहां से लिखा मैंने, यहां से। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2ax को लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूं और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सो आई विल हैव vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2axsx एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब कुछ मैंने किस एक्सिस के अलॉन्ग लिखा है, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखा है, और वैसे ही सेम लॉजिक से वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वैसे ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग। एंड वैसे जेड कंपोनेंट्स। इसमें द रीजन आई स्प्लिट द इक्वेशन इनटू एक्स वाई individual components instead of writing in vector form, I can still write it in vector form, I'm going to show you how to do it, but problems में the third equation of motion के लिए the individual component वाले equations are more useful than the vector form, वो हम लोग देखेंगे। so अगर मैं just z axis के लिए भी लिख लूँ तो ये बन जाएगा uz स्क्वायर प्लस 2az sz, और अगर मैं इनको जस्ट ऐड कर दूं तीनों को, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बिकम्स द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर्स याद है ना, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बिकम्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो कैन आई जस्ट राइट दिस एज v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो या वेलोसिटी का स्क्वायर बोलो, इफेक्टिवली दैट इज नथिंग बट द स्पीड, because remember instantaneous speed is the magnitude of instantaneous velocity। अच्छा, what about this ux square plus uy square plus uz square similarly becomes the square of the initial velocity,
एंड व्हाट इज दिस? कैन यू सी ax ऐसे x plus ay sy plus az z? कुछ फेमिलियर दिख रहा है? फिर से वेक्टर्स थोड़ा सा याद रखो. डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है? x कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किया, y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किया, z कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया. व्हाट इज दिस? a dot s. So this is the vector form of the third equation, although it's not as useful. है थोड़ा कहीं कहीं यूज है, but the individual equations have more use in general. So let me just write this as my third equation. वैसे मैं x के लिए x को highlight कर रहा हूँ, obviously y और z के लिए same form है equation का. Alright, so I hope you've understood how we derive the third equation of motion also. Lots of calculations on this board, but basic algebra. So we've established the three equations of motion and we also established the average velocity equation. So एक और चीज करेंगे इसके बाद. तो लिखना है तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो. Now let's look at an equation for the displacement in the nth second. इसका मतलब क्या है बताता हूँ. पहले थोड़ा सा हेडिंग टाइप लिख लो. Displacement in the nth second. So suppose मेरे पास एक पार्टिकल है. Let's say it starts from here. T equal to 0 पे यहाँ पर है. T equal to 1, T equal to 2, T equal to 3, T equal to n minus 1, T equal to n. Alright. So ये जो 0 to 1 जो टाइम इंटरवल है, can I call that the first second? जो t equal to 1 से 2 जो इंटरवल है, can I call that the second second? t equal to 2 to 3 क्या बोलूंगा? Third second, and so on, correct? So can you see n minus 1 to n will be called the nth second. 0 to 1 first second, 1 to 2 second second, 2 to 3 third second, n minus 1 to n nth second. So I want to derive an expression for the displacement in this time interval. I'm not talking about displacement from 0 to n. I'm talking about displacement from n minus 1 to n. Okay, so simple है. इसका टाइम इंटरवल कितना है? वो तो 1 सेकेंड ही है ना. n minus 1 सेकेंड से n सेकेंड तक इंटरवल कितना है? वो तो 1 सेकेंड. ये सारे टाइम इंटरवल्स 1 सेकेंड के. ठीक है. So can I write the displacement in the nth second? देखो ये सिंबल, ये नोटेशन रादर यूज कर रहा हूं मैं. Displacement in the nth second मतलब from t equal to n minus 1 to t equal to n. Can I write that as average velocity into time? टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड है, करेक्ट. सो बेसिकली वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगा और वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं. तो ये जो 1 सेकेंड है, दैट इज बिकॉज दिस टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ऑलराइट, और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? किस टाइम इंटरवल पे निकालना है? फ्रॉम दिस टू दिस. सो वी ऑलरेडी फाउंड एन एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट n. तो कैन आई राइट v प्लस u plus at. What will be the velocity at t equal to n? That will be u plus 8t. t मतलब n. This is the final velocity plus what will be the initial velocity at n minus 1? u plus 8t. t का वैल्यू क्या लिखूंगा? n minus 1 divided by 2. हो गया. देखो कितना आ रहा है. u plus u 2u divided by 2, वो 2 कट जाएगा. an plus an फिर से 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर एक माइनस a बाई 2. तो कैन आई जस्ट क्विकली राइट दिस एज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू n माइनस हाफ. वेक्टर फॉर्म में है. ठीक है. यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, बट this is not only for straight line motion, this is for any general motion. General motion मतलब uniform acceleration. So uniform acceleration बस चाहिए, but straight line motion होना जरूरी नहीं है. Alright, so this is also an expression that will be useful
and ideally we would like to remember it. अगर नहीं याद रहा तो भी simple ही है derivation. I hope you understood the derivation, but preferably we would like to remember it. So let me just write that. ठीक है, so we've figured out and established all the required equations of motion in order to analyze any problem on uniform acceleration, जो हम लोग अभी करेंगे. Okay, so just take it down or take a screenshot. Alright, now let's look at how to apply these equations of motion to a one-dimensional case. So, मेरी equation of motion क्या है एक बार फटाफट लिख भी लेता हूँ. V is u plus at था, S is ut plus half at squared, फिर v square is u square plus 2as, सब x कंपोनेंट में लिखना हूँ, वैसे ही y और z के लिए भी आएगा. फिर मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या था, v plus u by 2, and finally displacement in the nth second was u plus a vector times n minus half. So the displacement in the nth second. तो ये कितने हो गए? 5 equations is something that we're going to use in all the problems related to uniform acceleration. अच्छा, अगर वन डायमेंशन की बात करूं मैं, so let's say x axis के along जा रहा है पार्टिकल, तो सारे velocity, acceleration, displacement सब सिर्फ x axis के along है. So what we do for convenience is, see ये जो मेरा equation है vector form में, can I write v vector is v I cap, can I write u vector is u I cap, and can I write a vector is a I cap. Similarly displacement vector is s I cap, everything along I cap because x axis के along है motion. तो जब मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन, सपोज मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, तो v I cap इज इक्वल टू u I cap प्लस a I cap टाइम्स t. Correct? So for convenience, when we know that the motion is only along the x-axis in one dimension, तो हम लोग I cap we just drop it, नहीं लिखते हैं on paper for convenience. So I just write. ये चीजें तो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, इस तरीके से स्कूल में पढ़ते हैं, v equal to v plus at, s equal to ut plus half at square, but correct form with the correct notation is कि वो सारे vectors हैं that we have to keep in mind. As long as you keep that in mind, you can still write this knowing that v, u, a are all x components of the vector. ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, I am not cancelled I cap, I am not divided by I cap. Vector division, you can't divide by a vector. I hope इतना तो याद है तुमको vector chapter से. There's no such operation where you divide by a vector. तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया है ये स्टेप से लास्ट स्टेप तक, जस्ट कन्वीनियंस के लिए लिखा नहीं है मैंने I cap. Okay, but keep in mind v, u, a are all x components. Similarly, when I write s is equal to ut plus half at squared, तो यहाँ पर I cap है, यहाँ पर भी I cap है, यहाँ पर भी I cap है, पर वो हमारे मन में है, पेपर पे नहीं लिखा. ठीक है, just keep that in mind. और so just as an example, जब बोलते हैं कि पार्टिकल लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इनिशियली एट t equals 0, एंड इसका एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेट्स से एक्सेलरेशन इज 5 meter per second squared, but in the opposite direction. This is your initial velocity. So they ask you to calculate time at some instant. Basic formula application, but just to make sure you understood, when I write u vector, I write it as 10 I cap. So u का value was 10 रखूंगा मैं. And I write a vector, I write it as minus 5 I cap because it's along the negative x-axis. That is why the acceleration a will be negative here. ठीक है. So basically I will write v is equal to 10 minus 5t. तो कोई भी टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालें तो निकल जाएगा. अगर ये v नेगेटिव आया इसका मतलब क्या, इट इज एक्चुअली नेगेटिव I cap. द नेगेटिव साइन हियर डिनोट्स द डायरेक्शन. ओके, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो पॉजिटिव होता है, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड व्हेन यू राइट एक्सेलरेशन -5, उसका मतलब क्या, माइनस साइन का मतलब क्या है, there is actually an I cap there, so it's minus I cap.
It's the direction of the vector, whether it's acceleration or velocity. ठीक है. So just be careful about that. Baki very straightforward. I hope you've understood everything on this board, and we've laid the foundation for problem solving now, which we are going to start on the next after this is done. मेरा तो हो गया, तुम लोग लिख लो या screenshot ले लो, and then we'll proceed and solve a few problems. Now let's do a question based on uniform acceleration. तो पहले एक बार पढ़ लेते question. Particle starts with velocity 4 meter per second I cap and uniform acceleration of minus 2 I cap at t equal to 0. Find the displacement and distance traveled till t equal to 6 seconds. तो question तो वैसे straightforward है, but just थोड़ा सा we have to be a little careful. Okay, तो displacement पूछा गया है t equal to 6 सेकेंड. उसके लिए we have a direct formula जो s equal to ut plus rpt squared है. That is for displacement, not distance. So we have to keep that distinction in mind. When they ask you distance in the exam, we have to be little careful as we are going to see here. तो पहले तो displacement देखते हैं. t equal to 0 पे जो velocities है वो जो velocity है वो 4 दिया हुआ है. So u vector is 4 I cap. Acceleration is minus 2 I cap. So displacement कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, तो मैं अभी ये वेक्टर जो है वो हटा रहा हूं s के ऊपर से. सो लाइक आई सेड, इट इज अंडरस्टूड कि ये सारे x कंपोनेंट्स है. तो s मतलब वो x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो देखो जरा कितना आ जाएगा. t इक्वल 6 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, तो 4 इंटू 6 एंड ये 2 कट गया. सो माइनस टी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर्ड. तो कितना आ जाएगा? माइनस 12 मीटर. मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज माइनस 12 मीटर्स आई कैप. ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. माइनस का मतलब क्या है? इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स हियर लेट्स से इनिशियली t इक्वल 0 पे, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इट्स कम बैक टू द लेफ्ट. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. सो कहीं तो उसका वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो 4 है वो कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो स्पीड कम होता जाएगा, रादर स्पीड कम हुआ कहीं तो वेलोसिटी 0 बन जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली कम हियर. सो दिस पॉइंट वुड बी दिस लेंथ वुड बी 12 meters. That is the displacement का magnitude. ठीक है. So it has traveled to the right and then come back this way. Alright, तो मेरा displacement 12 आ गया. अब distance देखो. So यहाँ पे distance and displacement are not same. So that is something that we always have to keep in mind. In the question they will only ask you distance. ये मैंने displacement पूछा गया, but question में usually सिर्फ distance ही पूछेंगे if they want to ask you distance. And most students will use the displacement formula, get the answer as 12 और खुश होके आंसर ऑप्शन में रहेगा भी 12, खुश होके आगे बढ़ेंगे. But you have to be very careful. यहाँ पे distance and displacement का magnitude are not equal because the particle is taking a U-turn. ठीक है. तो अगर मैं देखूं, पहले पार्टिकल यहाँ पर था, it went here, इस पॉइंट पे velocity 0 हुआ, then it came back finally यहाँ पर t equal to 6 सेकेंड पे. तो ये जो लेंथ है this is 12 meters, but ये लेंथ कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना. So velocity जहाँ पे 0 हुआ, initial velocity 4 है. Can I get the displacement till velocity becomes 0? I can use the third equation. Third equation क्या था? v square is u square plus 2as और यहाँ पर basically सब x components है, पर अभी x component लिख नहीं रहा हूँ just for convenience, but we know it's all x component. तो final velocity 0, initial velocity 4, acceleration minus 2 and displacement is something we want from the initial point to the point where velocity becomes 0. तो देखो कितना आ गया. ये डिस्प्लेसमेंट बन गया 4 मीटर बन गया ना. तो ये लेंथ बन गया 4 मीटर्स. तो ये लेंथ 4 है, 4 राइट में गया, वापस 4 आया, ये लेंथ भी 4 वापस ओरिजिनल पोजीशन पे है, और फिर 12 लेफ्ट में और गया बिकॉज ये 12 है. तो 4 राइट में, 4 अगेन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड देन 12 टू द लेफ्ट. सो टोटल डिस्टेंस कितना है? दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन. दैट विल बी 4 plus 4 plus 12, दैट विल बी 20. So whenever you want to calculate distance, you have to check, is the particle taking a U-turn?
इफ द पार्टिकल इज टेकिंग अ यू टर्न, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0. सो यू हैव टू चेक कि 6 सेकेंड्स जो दिया गया टाइम इंटरवल, उसमें इज द वेलोसिटी बिकमिंग 0 और नॉट. ठीक है. Alright, so that is the way to solve this question. और एग्जाम में सिर्फ डिस्टेंस पूछेंगे. We'll follow the same process, but एग्जाम में सिर्फ डिस्टेंस पूछेंगे. So you have to kind of remember this process. So just keep this in mind because ये common question है और common mistake भी होता है. Alright, so you can just take it down और फिर एक question मैं देता हूँ on similar concept for you to practice on. So just take it down or take a screenshot. So let's do a question पढ़ लेते हैं एक बार. Particle starts at equal to 0 with velocity, initial velocity u vector is 2 I cap and acceleration vector is a constant minus 2 I cap. Question क्या पूछा? Find the average speed by the time its velocity becomes minus 2 I cap. So it's a little similar to what we just did. So if you want you can give it a try. Average speed का formula याद रखो. And so this is a question that combines जो first lecture में average quantities के बारे में पढ़ा था, average speed के बारे में पढ़ा था, along with the concepts from uniform acceleration जो इस lecture में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो I suggest pause the video, give it a try, and then you can take a look at my solution and see if you've gotten it correct. Okay, so सबसे पहले तो average speed का definition क्या है? Average speed is distance traveled divided by time taken. तो मुझे यहाँ पे distance चाहिए. So not displacement, I need distance. So distance traveled के लिए first I have to check if the velocity is becoming 0 at some point, because if the particle is taking a U-turn, तो फिर displacement और distance के magnitudes अलग अलग हो जाएंगे. So we have to be a little careful. So it should be pretty obvious कि particle will be taking a U-turn because initial velocity 2 I cap है positive x direction में और final velocity minus 2 I cap है. तो पहले राइट में जा रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स द वेलोसिटी वुड हैव बिकम 0 एट सम इंस्टेंट. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, सब ऐसा ही यूनिट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. टू द राइट, लेट्स से राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और डीसेलरेट करेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. फिर कहीं पे वेलोसिटी 0 होगा and then it will accelerate in the left direction, मतलब negative x axis के अलग accelerate करेगा. Okay, so find the average speed. तो मुझे distance चाहिए और time चाहिए. So time कैसे निकलेगा? Time is very simple because I know the final velocity, I know the initial velocity, I know the acceleration. We have the equation relating all three. The first equation of motion. So can I write v vector is u vector plus a vector times t. तो देखो v vector कितना है? माइनस 2 आई कैप, यू वेक्टर कितना है 2 आई कैप, ए वेक्टर कितना है माइनस 2 आई कैप टाइम्स टी. तो कैन यू सी टी विल बिकम 2 सेकेंड्स. दिख रहा है सबको? ये आई कैप ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दो, लाइक आई सेड अर्लियर. यू कैन जस्ट ड्रॉप द आई कैप एंड देन ऑल ऑफ दीस वैल्यूज विल बिकम द एक्स कंपोनेंट्स. ओके, सो 2 सेकेंड्स में द वेलोसिटी बिकम्स माइनस 2 आई कैप. तो मेरे पास टाइम तो आ गया. अच्छा, नाउ डिस्टेंस निकालना मुझे. सो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैन यू सी कि जो इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप है और जो फाइनल वेलोसिटी माइनस 2 आई कैप है, एवरेज वेलोसिटी कितना हो रहा है? हाउ मच इज द एवरेज वेलोसिटी? 0 हो गया ना, u प्लस v बाई 2. तो इन दिस 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया. So the particle is coming back to its original position in 2 seconds. समझ में आ रहा है सबको? So particle is coming back to its original position in 2 seconds. तो basically the distance traveled will be double the length from initial position to the position where velocity becomes 0. यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो ये लेंथ कैसे निकलेगा? वन वे ऑफ गेटिंग इट इज कि मुझे पता है टोटल टाइम 2 सेकेंड्स है, तो ईच हाफ का टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा. तो यू कैन यूज ऐसी यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और यू कैन इवन यूज एवरेज वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है. सी आई एम ओनली कंसीडरिंग वन हाफ ऑफ द जर्नी, तो आई कैन जस्ट यूज दैट. लेट्स से ये लेंथ L है, सो कैन आई से L इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितना है 2 प्लस 0
डिवाइड बाय 2, और कितना टाइम लगा 1 सेकेंड, बिकॉज टोटल जर्नी का टाइम 2 सेकेंड्स था, तो ईच हाफ विल बी 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 मीटर. So the length is 1 meter from the initial position to the position where velocity becomes 0. तो 1 meter राइट में ट्रैवल करेगा, 1 meter वापस लेफ्ट में ट्रैवल करेगा, एंड टोटल डिस्टेंस देयरफॉर कितना हो जाएगा 2 meters. So the distance becomes 2 meters, and therefore the average speed, अब तो सिंपल है, 2 meters divided by time, 1 meter per second. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज स्पीड इज हैज सम मैग्नीट्यूड व्हिच इज 1 मीटर पर सेकंड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें जो लेंथ, ये जो लेंथ है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द पोजीशन वेयर वेलोसिटी बिकम्स 0, you could have even used the third equation of motion. Alternatively, you could have even used the third equation of motion कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस 2as कर रहा हूँ, तो v इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, सो 2 स्क्वायर प्लस 2as एक्सेलरेशन. सो अभी सब x कंपोनेंट्स लिख रहा हूं, तो -2 आएगा ना एक्सेलरेशन, टाइम्स s कितना है, वही तो चाहिए अपने को l, तो यहां से भी l मेरा 1 मीटर आ जाता. दिस इज द अल्टरनेट वे टू गेट इट. सो इफ यू वर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस तो फिर तुम शायद ये यूज करते, बट अगर पहले टाइम कैलकुलेट कर लिया तो फिर तो तुम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी कर लो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप यू वर आल्सो एबल टू गेट इट. ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. सो मेरे पास एक ट्रेन है, सो ट्रेन ट्रैवल्स टू द राइट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ट्रेन ऐसे जा रहा है, एंड देयर इज अ पोल जस्ट टू द साइड ऑफ द ट्रेन का ट्रैक्स. So when point C, which is the front of the train, crosses the pole, the speed of the train is v1. When A crosses the pole, so A is the rear end, left end of the train. When A crosses this pole, speed of the train is v2. तो जब B cross करता है pole, speed निकालना, and B is such that B is the midpoint. So let me just write AB is equal to BC. तो B is the midpoint of the train, and when B crosses the pole, पूछा गया कितना स्पीड होगा ट्रेन का उस इंस्टेंट पे. एक्सक्यूज मी. व्हेन बी क्रॉसेस द पोल, पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट दैट इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2. v1 v2 के टर्म्स में निकालना है. ओके, सो पॉज द वीडियो, ट्राई इट आउट और फिर देख लो इफ यू गॉट इट करेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो जब C ट्रैवल कर रहा है, C क्रॉस कर रहा है पोल को, स्पीड दिया गया है v1. सो लेट मी यूज अ थर्ड इक्वेशन. यहाँ पे देखो टाइम का कुछ नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट का कुछ आएगा, बिकॉज AB और BC लेंथ्स कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन में. सो आई ट्राई एंड यूज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई वांट टू अवॉइड द वेरिएबल ऑफ टाइम कंप्लीटली. तो लेट्स से कि AB का लेंथ L है, BC का लेंथ L है और एक्सेलरेशन A है. ये मैंने वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए, एंड आई विल होप कि एंड में कैंसिल हो जाएंगे. इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट देन वो कैंसिल हो जाएंगे. सो AB सेल, BC सेल, ये मैंने अज्यूम कर लिया. सो जब ट्रेन पॉइंट C इज एट द पोल, तो उसका स्पीड कितना है v1. व्हेन पॉइंट A इज एट द पोल, तो उसका स्पीड कितना है v2. So from this instant to this lower instant, from the instant when C crosses the pole to the instant where A crosses the pole, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्रेन का 2L. ये पूरा आगे गया, करेक्ट. सो कैन आई राइट फ्रॉम दिस इंस्टेंट टू दिस इंस्टेंट, बेसिकली माय इनिशियल वेलोसिटी इज v1, फाइनल वेलोसिटी इज v2, डिस्प्लेसमेंट इज 2L. सो कैन आई राइट माय थर्ड इक्वेशन एज v2 square is v1 square plus 2 into acceleration into 2L. ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए क्या, आई वांट द स्पीड व्हेन B crosses the pole. सो व्हेन B crosses the pole, B तो मिड पॉइंट है ना, तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन L. सो फ्रॉम द इंस्टेंट वेयर C crosses the pole to the instant where B crosses the pole, लेट्स से यहाँ पे स्पीड कुछ
वी बी बोलता हूं। तो इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना हुआ? हाफ द लेंथ एल। तो कैन आई राइट द थर्ड इक्वेशन अगेन? vb square, this becomes like the final velocity, this is like the initial velocity, so vb square is v1 square plus 2a, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? l। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे vb निकालना है, तो what I will do is I can simply substitute al from one of the equations into the other, तो al directly eliminate हो जाएगा। समझ में आ रहा है? And that is what was our aim कि a और l तो मैंने वेरिएबल्स अज्यूम किया, वो क्वेश्चन में नहीं दिए गए। So we have to ensure कि it gets cancelled out in the end, it does not appear in the end. So from the second equation, can I write 2al is vb square minus v1 square and substitute it here? तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास, v2 square is v1 square plus twice of 2al। 2al कितना हो गया सेकेंड इक्वेशन से? vb square minus v1 square by नहीं, बाय कुछ नहीं, सही लिख रहा हूं ना? 2al is vb square minus v1 square, वो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो हो गया, देख लो यहां से यू शुड गेट vb स्क्वायर कितना आ जाएगा? v1 स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर विल बिकम माइनस v1 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस v1 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज योर स्पीड, स्क्वायर है तो लेट मी जस्ट यहीं पे मैं रब करके स्क्वायर रूट लिख ही लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस, व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द पोल, दिस विल बी योर स्पीड। सो आई होप यू अंडरस्टूड how we use the third equation of motion to solve this question, and I hope you were also able to get it. एक common mistake जो students यहाँ पे करते हैं for some reason, I don't know why, but ऐसा करते हैं कि पॉइंट C जब क्रॉस हो तो स्पीड v1, पॉइंट A क्रॉस हो तो स्पीड v2, तो मिड पॉइंट क्रॉस हुआ तो कितना स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, है कि नहीं? अबे कुछ भी थर्ड इक्वेशन यूज करो, प्रॉपर फिजिक्स यूज करो, ऐसे कुछ भी मतलब फील से मत करो। फिजिक्स में फील is can lead to very wrong answers, and इतना फील लेने की कोशिश मत करो। use a mathematical approach as far as possible, and that will ensure कि you will not make any conceptual mistakes. Alright, हाँ लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Let's look at another question. So एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ट्रेन है मेरे पास, ट्रेन starts from rest and accelerates uniformly, is accelerating to the right. थर्ड कोच, सो ये सारे कोचेस है, कोच मतलब क्या कंपार्टमेंट बोल दो, तो n कंपार्टमेंट्स है, n कोचेस है इस ट्रेन में, और सब आइडेंटिकल है, मतलब सब आइडेंटिकल लेंथ है कोचेस का, ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? थर्ड कोच पासेस बाय द पर्सन इन 5 सेकंड। सो एक पर्सन है दैट इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द थर्ड, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द थर्ड कोच प्लेटफॉर्म पे द पर्सन इज स्टैंडिंग एंड पर्सन इज ऑब्जर्विंग द ट्रेन। सो थर्ड कोच, ये पूरा जो थर्ड कोच है, इट पासेस बाय द पर्सन ऐसे इन 5 सेकंड्स, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेन, पूरा बाकी का ट्रेन इंक्लूडिंग द थर्ड कोच, तो पूरा ये जो लेंथ है, ये पूरा जो लेंथ है, that will pass by the person in 20 seconds. So question क्या पूछा है? Find n, which is the total number of coaches in the train. Alright, try it out and फिर देखो तुम करेक्ट करते हो क्या। देख लो क्वेश्चन भी अच्छी तरह से देख लो। Alright, so let's solve this question. जो थर्ड कोच है, that passes by the person in 5 seconds and all the coaches are identical, so हर एक कोच का लेट से लेंथ सेल, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बट वी विल अज्यूम इट एंड होप दैट इट विल कैंसल आउट। एक्सेलरेशन भी a मान लेते हैं, अगेन वी विल होप इट विल कैंसल आउट। ऑलराइट, तो थर्ड कोच जब जा रहा है, इट इज क्रॉसिंग द पर्सन, तो कितना लेंथ डिस्प्लेस होगा ट्रेन? वो कोच के लेंथ के बराबर, विच इज l, ठीक है। सो इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी this length L of one coach, correct? By the time the coach gets displaced by L, so 5 seconds has passed,
सो कौन सा इक्वेशन यूज करूं? मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास टाइम है, एक ही इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन्वॉल्व करने वाला, विच इज द सेकंड इक्वेशन. सो कैन आई राइट डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेरी गुड. बचा सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u 0 हो गया, तो हाफ एटी स्क्वायर हाफ इंटू a इंटू t मतलब 5 स्क्वायर, सो इंटू 25. ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है? रेस्ट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग थर्ड कोच पासेस बाय इन 20 सेकंड्स. सो रेस्ट ऑफ द ट्रेन मतलब इंक्लूडिंग थर्ड कोच मतलब ये पूरा लेंथ इट पासेस बाय द पर्सन. तो कितने कोचेस है यहाँ पर? टोटल n है, यहाँ पे 2 छोड़ दो तो n माइनस 2 कोचेस है यहाँ पर. सो n माइनस 2 कोचेस का लेंथ इज n माइनस 2 टाइम्स L. तो उतना डिस्प्लेस हुआ ट्रेन व्हेन इट क्रॉसेस द पर्सन. सो वंस अगेन आई कैन राइट द थर्ड इक्वेशन, सॉरी द सेकंड इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट कितना? n माइनस 2 टाइम्स L, पूरा इतना n माइनस 2 कोचेस डिस्प्लेस हुआ, should be equal to initial velocity 0 ut plus half at square और t मतलब कितना 20 स्क्वायर मतलब 400. Now it's very simple, just divide the equations. L भी cancel, A भी cancel, just as we had hoped and expected. हो गया, डिवाइड कर दो. लेट मी राइट 2 by 1, तो n minus 2 कितना आ जाएगा? 45 by 20, sorry 400 by 25, तो that will be 16 हो जाएगा, करेक्ट. 80 by 5, सो 16 हो जाएगा. सो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18. So there will be 18 coaches in this train. Once again, we have solved level 2 Pathfinder. So tough, बोलने के लिए टफ है अच्छे क्वेश्चन है पाथफाइंडर में, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, but because we are operating at that level, this kind of a question will seem normal to us. So well done, लिख लो, then we'll go ahead. Now let's do another question. तो यहाँ पे देखो, a car is traveling at 108 kph. Driver sees an old person on the road 100 meters away from him. He applies the brakes after a reaction time of 0.3 seconds. तो ये जो phrase है reaction time, तो reaction time मतलब जब ड्राइवर ने देखा old person को, उसके 0.3 seconds बाद he was able to apply the brakes. So for those 0.3 seconds, the car was still traveling at a constant speed of 108 kph. तो उस 0.3 सेकंड के बाद the brakes are applied and the car uniformly decelerates at 5 meters per second squared, coming to rest. So the question is, will the old person, we are assuming that the old person is not is just standing, survive? So try karo and let's hope for the best, and then you can take a look at the solution. Alright, so अगर मैं diagram बनाऊं, so the car is traveling and let's say the old person is standing. ये distance is 100 meters. So the car is traveling at 108 kph. उसको पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर्स पर आवर. किलोमीटर्स मतलब इंटू 1000 मीटर्स और आवर मतलब 3600 सेकेंड्स. तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये देखो, ये 5/18 हो गया ना, एंड 108 इज 18 इंटू 6, सो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ऑलराइट. सो मेरे पास स्पीड आ गया इनिशियली. सो फर्स्ट 0.3 सेकेंड्स के लिए द कार इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड. फर्स्ट 0.3 सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इन 0.3 सेकंड कार विल ट्रैवल स्पीड इंटू टाइम, 30 इंटू 0.3, 9 मीटर्स ट्रैवल करेगा बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. ठीक है, सो फर्स्ट 0.3 सेकंड में the car has reached here where this is 9 meters. Alright, now we have to figure out whether the car will stop before the person, hopefully. So final velocity 0 कर देंगे. Initial velocity is 30 meter per second. सब right hand side पे सब पॉजिटिव ही.
initial velocity positive 30. I've taken right hand side as positive x-axis. What about the acceleration? बोले car uniformly decelerates, मतलब उसका acceleration is opposite to velocity, so acceleration is negative I cap के direction में. I will write acceleration is -5. ये माइनस साइन मतलब वो माइनस आई कैप है, जो हम लोग आई कैप लिख नहीं रहे. ऑलराइट, आई जस्ट हैव टू फिगर आउट कि कितना डिस्प्लेस होगा कार टिल इट कम्स टू रेस्ट. सो लेट्स यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे. v square is, so final is 0, initially is 30 squared plus 2 into, तो देखो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 900 डिवाइडेड बाय 10, तो 90 मीटर आ गया. एंड the car will travel a further 90 meters before coming to rest, and finally yes, the person will be saved by 1 meter. So yes, the person survives by 1 meter. Alright, I hope you understood the question. The point of taking this question was simple tha, was to just give you an idea of the reaction time. जो phrase है reaction time, that you should understand what that means. Alright, just लिख लो and then we'll go ahead. Let's do another very good question. A particle starts from rest at t equal to 0 with constant acceleration a. At t equal to t1, acceleration is reversed while remaining same in magnitude. So find the time when the particle reaches its original position. तो अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें दो पार्ट्स है जर्नी के जहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. सो पूरे जर्नी में इट इज नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्सेस एट सम पॉइंट. So let's see, particle starts, let's say here, travels with constant acceleration a. So let's say at ये t equal to 0 पे यहाँ पर था, t equal to t1 पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाता है, बट वेलोसिटी अभी भी राइट में है. यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा राइट में, बट उसका एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन राइट में था, अब वो एक्सेलरेशन लेफ्ट में हो जाएगा, तो वो डिसेलरेट करेगा. पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा, कहीं तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा, एंड देन इट विल अगेन एक्सेलरेट टू द लेफ्ट. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट टाइम विल इट रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन. So let's say this is point O, let's say this is point A. A is the instant, or A is the position where the particle का acceleration reverses. Alright, so from O to A, can I write एक तो displacement कितना हो जाएगा? Can I write it as half A t1 squared because initial velocity is 0 है ना? ठीक है. I've taken right hand side as positive x-axis. तो u t plus half a t square में u तो 0 है एंड a पॉजिटिव है, सो हाफ a t1 स्क्वायर, t1 टाइम में a पहुंचा, कैपिटल A तक पहुंचा. अच्छा, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी हियर? लेट्स से वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u plus at, तो u तो 0 है, तो सिंपली at1. ठीक है. अब एनालाइज करते हैं जर्नी फ्रॉम a एंड बैक अगेन टू o. सो फ्रॉम a बैक अगेन टू O. तो इसमें बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? राइट हैंड साइड पॉजिटिव है. कैन यू सी दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गोइंग टू बी दिस वेक्टर फ्रॉम A to O. तो इट विल सिंपली बी द नेगेटिव ऑफ हाफ a t1 स्क्वायर्ड. यहाँ पे path does not matter for displacement, correct? We know the initial position for the second portion of the journey is A and the final position is O. So the displacement is this dotted arrow. So left में है मतलब वो negative I cap है. So can I write from A to O the displacement is minus half at1 squared, negative of this. This was O to A. This is A to O. टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम चाहिए. सो कौन सा इक्वेशन है मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन्वॉल्व करता है? सेकेंड इक्वेशन. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन इज माइनस a now because it is acceleration is to the left,
And what is the initial velocity? So for this portion of the journey, let's say this portion from A to O, the time taken is let's say capital T. ठीक है, तो इस पोर्शन ऑफ द जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो डिक्रीज करता जाएगा, जीरो होगा, फिर वापस आएगा. बस अब कौन सी इक्वेशन में डालना है? सेकंड इक्वेशन में डालना है और सॉल्व करना है. तो मेरा सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो a जो है दैट इज माइनस ए, एक्सेलरेशन माइनस ए है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस हाफ ए टी वन स्क्वायर. सो मेरे पास आ जाएगा माइनस हाफ ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए टी वन माइनस हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर. बस अभी कैपिटल टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, वी हैव टू सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ टी वन. तो जरा जस्ट देखो ए तो कैंसिल हो गया एंड लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एज वेल एंड सारे टर्म्स एक साइड पे ले लेता हूँ. सो देखो आई विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन. आई हैव टी स्क्वायर्ड माइनस 2t1t माइनस t1 स्क्वायर शुड बी 0. सही लिख रहा हूँ? ठीक है, तो कैपिटल टी में क्वाड्रेटिक आ गया, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला तो याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो माइनस बी तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड, सॉरी 2t1 इज b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड विच इज 4t1 स्क्वायर्ड माइनस 4ac, तो वो बन जाएगा प्लस 4t1 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल टी विल बी पॉजिटिव, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे अंदर 8t1 स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, वी विल रिजेक्ट द नेगेटिव रूट. सो कैपिटल टी विल बिकम, ये 2t1 है, तो अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं लिख लेता हूँ प्रॉपरली, 2t1 प्लस माइनस. ठीक है, तो नेगेटिव रूट हटा देंगे बिकॉज कैपिटल टी वी नीड इट टू बी पॉजिटिव. तो देखो कैपिटल टी कितना आ जाएगा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर से भी एक 2 निकल जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ रूट 2 प्लस 1 टाइम्स t1. दैट्स टाइम आफ्टर पॉइंट ए. बट पूछा गया फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स ओरिजिन, तो मतलब स्मॉल टी का वैल्यू पूछा गया. तो इट स्टार्टेड एट टी इक्वल 0 एट पॉइंट ओ, तो वहां से मेजर करके टाइम का वैल्यू अपने को देना है. सो माय आंसर वुड बी कैपिटल टी प्लस t1. t1 टाइम लगा o टू a और फिर a से बैक अगेन o तक कितना टाइम लगा? कैपिटल t. तो टोटल कितना हो गया? 2 प्लस रूट 2 टाइम्स t1 एंड दिस इज योर आंसर. देखो समझ में आया क्या? आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक था. दिस इज ओनली कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज द फिजिक्स पार्ट. फिजिक्स पार्ट में बस इतना ही ध्यान रखना था. द की टू दिस क्वेश्चन वाज टू रिकॉग्नाइज दैट द पाथ डज नॉट मैटर फॉर द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ओ इज स्टिल गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितने दूर जाके वापस आए. दैट वाज द की टू दिस प्रॉब्लम. बाकी तो बस अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक है, तो वो तो खुद से तुम लोगों को वैसे भी कर लेना चाहिए. This question was, I took this question from a book called book by the author S.S. Krotov. Krotov करके book है, popular book है, but it has a reputation of being on the tougher side. But in my opinion उतना tough नहीं है, and these kind of questions are JEE Advanced level questions. अगर kinematics में questions आता है JEE Advanced level में, JEE Advanced में, तो these are the kind of questions that will come. तो लोग बोले टफ है ये क्वेश्चन या नहीं टफ है, डजंट मैटर, वी आर गोइंग टू ऑपरेट एट द लेवल दैट JEE Advanced expects us to. So that's how we do this question. लिख लो आराम से, समझ लो, एंड स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या लिख लो. Now let's do a nice problem.
a particle is traveling with initial velocity 11 I cap and acceleration of minus 2 I cap, तो constant acceleration है. Find the average speed during the 6th second. ठीक है, तो ट्राई करना है तो कर लो. जस्ट बी लिटिल केयरफुल. आई हैव आस्क्ड एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो 6th सेकेंड मतलब क्या? मतलब t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 6. दिस इज द टाइम इंटरवल इन विच वी आर ऑपरेटिंग. ठीक है, तो स्पीड पूछा मतलब डिस्टेंस बाय टाइम. और डिस्टेंस जब भी आता है, यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल and check is the particle taking a U-turn or not. Particle will take a U-turn when the velocity becomes 0. तो पहले वो check कर लेते हैं when does the velocity become 0. So initial velocity is 11 I cap. Final velocity 0 रखते हैं. Acceleration is minus 2 I cap. तो v equal to u plus 80 अगर मैं करूँ, तो I cap नहीं लिख रहा हूँ. U is 11 and minus 2t. So t becomes 5.5 seconds. इसका मतलब yes, 5 t equal to 5 to t equal to 6 में the velocity is indeed becoming 0 at 5.5 seconds. So what is going to happen is particle is starting off with 11 I cap, t equal to 5.5 पे velocity 0 रहेगा and then it will take a U-turn. So t equal to 5 पे वो particle यहाँ पर है and t equal to 6 पे particle यहाँ पर होगा. तो distance निकालना पड़ेगा हम लोग. ठीक है, because we need speed है, velocity नहीं पूछा है, speed पूछा है. So this is the distance. So can you see that अगर मैं ये portion consider करूँ t equal to 5.5 से 6 तक का, तो यहाँ पे तो velocity 0 है, correct? 5.5 पे तो velocity 0 है. So if I only consider this portion of the journey, वो कितना distance travel करेगा? I can just use initial velocity as 0. So and the time interval is 0.5. So this displacement will be initial velocity 0 और ये length basically magnitude निकाल रहा हूँ मैं, half into acceleration is how much? Just magnitude चाहिए. So acceleration is 2 into t squared मतलब 0.5 squared. तो कितना हो जाएगा ये? 0.25 मीटर हो जाएगा. So 5.5 से 6 तक 0.25 मीटर ट्रैवल किया और ये सिमेट्रिकल है. 5 to 5.5 भी 0.25 मीटर ट्रैवल करेगा. तो 0.25 मीटर यहाँ पर एंड 0.25 मीटर यहाँ पर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 0.5 मीटर्स. एंड वी नीड डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम इंटरवल कितना पूरा? 1 सेकेंड है ना. 6 सेकेंड मतलब 5 to 6 मतलब 1 सेकेंड. तो डिस्टेंस कहाँ गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दैट इज योर एवरेज स्पीड. Average speed is 0.5 meter per second. So this is you can say it's like a trick question. Trick मतलब it is to trick the student into getting fooled into using the average velocity formula. Distance निकालना पड़ेगा, not displacement, because average speed पूछा है. Always keep that in mind. And whenever you are asked to find distance in such questions, जहाँ पे velocity और acceleration, initial velocity और acceleration का direction opposite है, so there is a chance where the particle will take U-turn. तो वो हमेशा ध्यान रखना, because more often than not they want you to get fooled and fall into the trap that they are setting. They मतलब question paper setter. Well, that's it for today. I'll see you at the top. Good night.